Namaste everybody. Today we are going to study a chapter Monkey Travel by Ruskin Bond. If you have not subscribed, please subscribe, like and share. This is my request. And one more request, all of you must watch the video till last. About the author, first of all, Ruskin Bond has been writing for over 60 years and has now over 120 littles in print. Novels, collections of stories, poetry, essays, anthologies, and books for children. His first novel, The Room on the Roof, received the prestigious John Llewellyn Rhys Award in 1957. He has also received the Padma Shri in 1999, the Padma Bhushan in 2014, and 2 awards from the Sahitya Akademi, one of his short stories and another for his writing for children in 2012. The Delhi government gave him its Lifetime Achievement Award. He was born in 1934. He grew up in Jamnagar, Shimla, New Delhi and Dehradun. Apart from 3 years in the UK, he has spent all his life in India and now lives in Mussoorie with his adopted family. Now we will study about the story. The Monkey Travel story is about the naughty nature of a monkey named Tutu. She is a female monkey. She is a travel creating monkey who only creates problem at home and in the city. Tutu's main victims were Aunt Ruby and her friend Rocky. Tutu also travels grandma. She also traveled a jewelry shop by snatching a pearl necklace. She ran away with necklace. Almost half city chased her, and at the end she threw the precious necklace in a stream. The story is written in a comic format which is full of funny incidents. Now we are going to study the story Monkey Travel by Ruskin Bond, page number 1. Read the following story and enjoy mischief of a troublesome monkey. Grandfather bought Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. The man had 3 monkeys. Tutu was the smallest but the most mischievous. She was tied up most of the time. स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि ग्रैंडफादर एक मंकी बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं स्ट्रीट एंटरटेनर से, जो मदारी होता है, बंदर का नाच दिखलाता है गली गली में, 10 रुपया में ख़रीद करके अपने घर पे। तो उस एंटरटेनर के पास 3 मंकी था। 3 में सबसे छोटा तुतू था और तुतू सबसे बदमाश था, हमेशा उसको बांध के रखता था। द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल, वो देखने में इतना बेचारा लगता था। विथ ए कॉलर एंड चेन दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू बी मच हैप्पियर इन आवर होम। तो उसको देख करके इनको दया लग गई कि कैसे बांध करके चेन से में रखा हुआ है उसको। तो सोचे कि अगर इस मंकी को अपने घर ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड ग्रैंडफादर हैड ए वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स। उनकी कमजोरी थी कि वो डिफरेंट तरह के अनयूजुअल भांति भांति के पालतू जानवर को अपने घर में रखा करते थे। इट वॉज द हैबिट दैट एट द एज ऑफ 8 or 9 यूज्ड टू इनकरेज। इट वॉज द हैबिट दैट आई हियर इज द नरेटर मीन्स रस्किन बॉन्ड। उन्होंने भी उनके साथ ही सीखा एज ऑफ 8 or 9 कि जानवर से प्यार करना चाहिए, जानवर को रखना चाहिए। अब वो घर में ले आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रैंड मदर एट फर्स्ट ऑब्जेक्टेड टू हैविंग ए मंकी इन द हाउस। यू हैव एनफ पेट्स एज इट इज, शी सेड, रेफरिंग टू ग्रैंड फादर्स गोट, सेवरल white mice and a small tortoise, but I don't have any.
I said, you are wicked enough for 2 monkeys. One boy in the house is all I can take. जब वो घर लेके आए तो ग्रैंड मदर ने ऑब्जेक्शन किया कि आप मंकी को ले आए, पहले से आपके घर में बहुत सारे जानवर हैं, एक गोट है, बहुत सारे वाइट माइस हैं, छोटे टॉर्टवाइज हैं। तो रिप्लाई देते हैं कि बट आई डोंट हैव एनी। आई सेड, यहाँ पर नरेटर कहता है कि बोला, नरेटर ने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो ग्रैंड माँ उसको कहते तुम ही एक इतना बदमाश हो, विकेड एनफ, तुम बहुत बदमाश हो कि तुम 2 मंकी के बराबर बदमाश हो। जितने 2 मंकी बदमाश होते हैं, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया। वन बॉय इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक। बट टूटू इजंट ए बॉय। बोला कि जब वो है ही तो एक बार और एक और आप ले आएंगे तो फिर हमको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ग्रैंडफादर बोलते हैं ट्रिम्फेंटली, मतलब विजयी मुस्कान के साथ, क्या टूटू इज नॉट ए बॉय, वो बॉय नहीं है, मतलब मेल नहीं है मंकी, दिस इज ए लिटिल गर्ल मंकी, यह एक लिटिल गर्ल मंकी है। ग्रैंडफादर गेव इन, ग्रैंड मदर गेव इन, तो ग्रैंड मदर ने सहमति जता दिया। सी हैड ऑलवेज वांट ए लिटिल गर्ल इन द हाउस, और ग्रैंड मदर को हमेशा एक इच्छा होती थी कि मेरे घर में एक छोटा सा छोटी लड़की होती। सी बिलीव्ड गर्ल्स वेर लेस ट्रेवलसम देन बॉयज। उनका हमेशा ये विश्वास था कि लड़कियां जो होती है बॉयज से कम बदमाश होती है, वो बदमाश नहीं के बराबर होती है। टूटू वॉज टू प्रूव हर रॉन्ग, लेकिन टूटू उसको गलत साबित कर देता है। सी वॉज ए प्रिटी लिटिल मंकी, देखने में तो बहुत सुंदर थी। हर ब्राइट आई स्पार्कल विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसके दोनों भौंवा, डीप सेट आईब्रोज, दोनों भौंवा के बीच में उसकी बदमाश आंखें चमक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, उसमें उसका नॉटीनेस छुपा हुआ था। एंड हर टीथ विच वेयर पर्ली वाइट, पर्ल की तरह जो उसका टीथ वाइट था, वेयर ऑफन रिवील्ड इन ए ग्रीन दैट फ्राइटेंड द विट्स आउट ऑफ। और जब वो हंसता था, वो हंसती थी वो बंदर, तो उसकी दांत जो निकलते थे पर्ली वाइट, तो बहुत कुछ वो कह देता था। नाउ सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सेकेंड पेज। Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow। और उस घर में ऑन्ट रूबी जो रहती थी, वो पहले ही पाइथन से परेशान हो चुकी थी लखनऊ में जब वो रहती थी। बट दिस वाज देहरा, अभी तो देहरादून में वो रह रही थी। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड ऑन्ट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विथ आवर पेट्स। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में ही मेरे अंकल और आंटी रहते थे, तो उनको पेट्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता था। वन डे ऑन्ट रूबी टूक अस ऑल बाय सरप्राइज। एक दिन ऑन्ट रूबी ने अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंस की कि सी अनाउंस दैट सी हैड बिकम इंगेज। तो बताए कि मेरा कहीं इंगेजमेंट मतलब अफेयर चल रहा है, किसी के साथ प्यार चल रहा है। वी हैड ऑलवेज थॉट दैट ऑन्ट रूबी वुड नेवर मैरी। और हम लोग सोचते थे कि अब ऑन्टी रूबी जो है वो शादी नहीं करेगी। सी हैड ऑफन सेड हरसेल्फ, वो ऐसा हमेशा कहती थी कि मैं ऐसे बैचलर रहूँगी। बट इट अपीयर्ड दैट द राइट मैन हैड नाउ कम अलॉन्ग इन द पर्सन ऑफ रॉकी फर्नांडीज। लेकिन ऐसा लगा कि रॉकी फर्नांडीज नाम का एक व्यक्ति, एक सही आदमी, जो एक स्कूल टीचर था, एक स्कूल टीचर फ्रॉम गोवा, उससे उनका इंगेजमेंट हो गया, अफेयर चल गया। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा आदमी है उनके लाइफ के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। नाउ डिस्क्रिप्शंस ऑफ रॉकी हैज़ बीन गिवन फर्दर। रॉकी वॉज ए टॉल, फर्म जॉड, गुड नेचर्ड मैन who visited the house quite often and brought me chocolates and cashews, of which he seems to have an unlimited supply। तो उस समय छोटा थे, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जब वो रॉकी फर्नांडीज उनके घर में आया करता था, तो उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया कि बहुत लंबा था, फर्म जॉड था, एकदम जबड़ा वगैरह बहुत मजबूत दिखाई पड़ता था, अच्छा नेचर का था। और जब भी वो विजिट किया करता था उसके घर में,
तो उसके लिए वो चॉकलेट्स लाया करता था बहुत सारा, और कैशनट्स काजू लाया करता था अपने जेबी में, और इसको दे दिया करता था। रस्किन बॉन्ड को मिल जाया करता था। वो बच्चे थे तो बहुत खुश हो जाया करते थे वो। बच्चे को और क्या चाहिए, अगर कोई आया, कुछ उपहार मिल गया, किसी के द्वारा चॉकलेट मिल गया तो खुश हो गया। क्यों आया, कहाँ आया, उससे उसको क्या मतलब है। ही ऑल्सो टॉट सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स। तो रॉकी फर्नांडीज ने नरेटर को, मतलब ऑथर को, रस्किन बॉन्ड को मार्चिंग सॉन्ग भी सिखाया था। मतलब वो एक म्यूजिक टीचर था। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी। तो स्वाभाविक था कि मैंने रॉकी फेवर में मंजूरी दे दिया कि हाँ ठीक है, दोनों का शादी होगा तो अच्छा होगा। ऑन्ट रूबी वन माई एडमायरेशन फॉर हैविंग मेड सच ए वाइज चॉइस। और आंटी रूबी भी बहुत खुश हुई, प्रशंसा की मेरी, कि मैंने उनके चॉइस पर मुहर लगा दिया। वन डे आई ओवरहर्ड मतलब चलते फिरते सुना, देम टॉकिंग ऑफ गोइंग टू द बाजार टू बाय एन इंगेजमेंट रिंग। मैंने चलते फिरते सुना कि वो लोग बाजार जा रहे हैं, एक इंगेजमेंट रिंग खरीदेंगे। आई डिसाइडेड आई कुड गो अलॉन्ग टू, आई वुड गो अलॉन्ग टू, मैं भी चाहता था कि मैं उनके साथ जाऊं। बट एज ऑन्ट रूबी हैड मेड इट क्लियर दैट शी डिड नॉट वांट। पहले ही ऑन्ट रूबी ने कह दिया था कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊं बाजार। आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फॉलो एट डिस्क्रीट डिस्टेंस। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा उनका पीछा पीछा, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके जाऊंगा ताकि उनको पता ना चले। टू बिकमिंग अवेयर दैट ए मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस वाज अंडर वे। और जो बंदर था वो भी समझ रहा था कि कुछ मिशन चल रहा है, कुछ हो रहा है अंदर अंदर रॉकी फर्नांडीज और रूबी के बीच में। डिसाइड टू फॉलो मी। उसने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे वो भी जाएगा। बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलोंग, शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट। जैसा कि मैंने भी तू को नहीं बोला था कि मेरे साथ चलो, तो उसने भी डिसाइड कर लिया मन में। देखो कितना समझदार वो जानवर था, डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम उसके पीछे पीछे जाएंगे लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हमको कोई देख नहीं पाएगा। वंस इन द क्राउडेड बाजार आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू ऑन्ट रूबी एंड रॉकी विदाउट बीइंग स्पॉटेड। मैं बाजार में भी चला गया चुपचाप, और प्रयास यही किया कि मेरे को वो दोनों में से कोई देख नहीं पाए। स्पॉटेड मतलब देख नहीं पाए, मेरे पर नज़र ना पड़े। आई वेटेड अंटिल दे हैड सेटल डाउन इन द लार्ज ज्वेलरी शॉप। मैं चुपचाप वेट करता रहा जब तक वो एक लार्ज ज्वेलरी शॉप में जाके बैठ नहीं गए। बिफोर सॉन्टरिंग पास्ट एंड स्पॉटिंग देम एज दो बाय एक्सीडेंट। तो जब तक कि उनको ये पता चले, मैंने अपने आप को छुपा के रखा कि अगर हम उनके सामने जाएंगे तो उनको लगा ओ ये इत्तेफाक था, वो ऐसे ही आ गया, सोच समझ के नहीं आया। ऑन्ट रूबी वॉज नॉट टू प्लीज एट सीइंग मी बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट। लेकिन जब उसकी नज़र पड़ी मेरे ऊपर तो रॉकी खुश हो गया। ऑन्ट रूबी गुस्से में आ गई, गुस्सा हो गई, और ये रॉकी फर्नांडीज, उन्होंने, अंकल ने मेरे को बुलाया, कम एंड जॉइन अस, आ जाओ। वो खुश हो गए। हेल्प योर ऑन्ट चूज ए ब्यूटीफुल रिंग। आओ दुकान में आंटी को एक अच्छा सा रिंग चूज करने में मदद करो। पेज 3.2, ये सेकेंड पैरा ऑफ पेज 3। द होल थिंग सिम्स टू बी ए वेस्ट ऑफ गुड मनी बट आई डिड नॉट से सो। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो भी हो रहा है, ख़रीदारी हो रहा है, ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। आंटी रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स। जब उन्होंने मेरे को देखा तो मेरे तरफ एकदम मुंह फुला करके देखा। अनलविंग मतलब वो घृणा की दृष्टि से मेरे तरफ देखे। वाइल द ज्वेलर एंड ऑन्ट रूबी वेयर शिफ्टिंग थ्रू द डायमंड रिंग्स। जब ज्वेलर और ऑन्ट रूबी आदान प्रदान कर रहे थे डायमंड रिंग्स को, टू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन बट मी। जब वो कर रहे थे, देख रहे थे डायमंड रिंग को, तो ठीक उसी समय टू एकाएक चुपचाप उस दुकान में घुस गया। उसको मैंने ही देखा था, कोई और नहीं देखा कि वो घुस रहा है। ए लिटिल स्किल ऑफ डिलाइट वॉज द फर्स्ट साइन सी गेव ऑफ हर प्रेजेंस। वो जैसे आया तो मुस्कुराई वो तू बंदर। एवरीवन लुक्ड अप टू सी। सब उसको तरफ देखने लगा। हर ट्राइंग ऑन ए प्रेटी नेकलेस। और उसका नज़र था वो सुंदर नेकलेस जो वो उनके वहाँ पे रखा हुआ था काउंटर पर, वो देख रहे थे। एंड व्हाट आर दीज स्टोन्स आई आस्क्ड। मैंने पूछा ये स्टोन्स क्या है।
दे लुक लाइक पर्ल्स, ये तो पर्ल्स की तरह, मोती की तरह देखते हैं, सेड रॉकी, रॉकी ने बोला। दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग ए ग्रैब फॉर देम, बोला हाँ उनसे लेकर के, बोला कि हाँ ये पर्ल्स ही है। इट्स दैट ड्रेडफुल मंकी क्राइड ऑन रूबी, रूबी को जैसे ही देखी करे ये तो बदमाश मंकी यहाँ आ गया। आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर, मैं जानती थी, वो बोली कि मैं जानती थी कि ये लड़का बंदर को लेकर के यहाँ जरूर आएगा, जबकि वास्तविकता ये थी नहीं, लेकिन उसको शक था और वो आ भी गया बंदर, तो शक साबित हो गया, लेकिन सही बात तो था नहीं, बंदर तो अपने मन से आई थी। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडॉर्निंग टूटूज नेक, अब वो टूटू तब तक छीन करके सीधे अपने गले में पहन लिया। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, द फनी थिंग्स विल हैपन। आई थॉट शी लुक्ड रेदर नाइस इन देम बट शी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट, मैं सोचा कि बहुत सुंदर लगेगा उसके गले में, जब तक मैं सोचता कि उसके बारे में कुछ बोले तब तक तो समय ही नहीं दिया। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ हर रीच, वहाँ से वो भाग गया। डॉक्ड अराउंड रॉकी स्लीप बिन माई लेग्स, मेरे लेग्स के पीछे होते हुए जंप करते हुए मेड फॉर द क्राउडेड रोड, भीड़ भरे रोड पर वो चला गया। आई रैन आफ्टर, मैं उसके पीछे दौड़ा। शाउटिंग हर टू स्टॉप, चिल्लाते हैं कि रुको, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। पेज नंबर 4, द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रैन आफ्टर, सो ज्वेलर भी उसके पीछे दौड़ा दुकान छोड़ करके। सो डिड रॉकी, सो डिड सेवरल बाय स्टैंडर्स, वैसा ही काम रॉकी भी उसके पीछे दौड़ गया। बाय स्टैंडर्ड जो रोड के आसपास खड़े थे वो भी उसके पीछे दौड़ गए बंदर के पीछे। हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिस किसी ने भी इंसिडेंट को, घटना को देखा, सब उसके पीछे दौड़ गए। एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट ज्वाइन इन द चेज, ये तो इंडिया है, जिसको पता भी नहीं था लोग क्यों दौड़ रहे वो भी दौड़ने लगा, भीड़ का भाग बन गया। पता नहीं क्यों दौड़ रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन सब दौड़ रहा है उसके पीछे, क्या मज़े की बात है। एज ग्रैंडफादर यूज्ड टू से, इन ए क्राउड एवरीवन प्लेज फॉलो द लीडर इवन व्हेन दे डोंट नो हु इज लीडिंग, तो उसको याद आता है नरेटर को, रस्किन बॉन्ड को, कि ग्रैंडफादर कहा करते थे कि जब भीड़ होता है तो सब दौड़ता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि लीडर मेरा कौन है, लीडिंग कौन कर रहा है। यही अंधेर नगरी है। नॉट एवरीवन न्यू दैट द लीडर वाज तूतू, कोई नहीं जानता था कि लीडर तूतू है, क्योंकि तूतू ने नेकलेस लेके भागा था। ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर, जो आगे दौड़ रहा था वही जानता था। शी ट्राइड टू मेक हर एस्केप एक्सपीडियरी बाय लीपिंग ऑन टू द बैक ऑफ ए पासिंग स्कूटरिस्ट। अब क्या मज़े की बात है, एक स्कूटर वाला जो जा रहा था, मंकी जाकर के उसके पीछे में बैठ गया। अब स्कूटर और तेज से चल रहा था। द स्कूटर स्वर्व इनटू ए फ्रूट स्टॉल, अब जो चला रहा था वो डर गया, अब जाकर के एक फ्रूट स्टॉल में ठोक दिया। वो तो गिर गया और ये फ्रूट स्टॉल पे जाके बैठ गया। केम टू ए स्टैंड स्टिल अंडर ए हीप ऑफ बनाना, और जो फ्रूट स्टॉल में बनाना था वहाँ बैठ के अब वो बंदर बनाना खाने लगा। वाइल द स्कूटरिस्ट फाउंड हिमसेल्फ इन द आर्म्स ऑफ इंडिग्नेंट फ्रूट सेलर, और जो स्कूटरिस्ट चला रहा था वो फ्रूट सेलर के गोदी में जा गिरा, वो भी बच गया। टू पिल्ड ए बनाना एट पार्ट ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन, जब तक लोग कुछ समझ पाते वो एक बनाना टूटू छील करके खा लिया और फिर सोच भागने लगा। फ्रॉम एन ऑनिंग सी मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग ऑन ए वाशरमैन्स टंकी, उसके बाद एक टंकी जो जा रहा था वाशरमैन्स का कपड़ा लेकर के उसके ऊपर बैठ गया। अब डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक्ड एंड रश डाउन द रोड, अब डंकी तो वो डर गया और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। मंकी चुपचाप बैठा हुआ है उस पर। वाइल बंडल्स ऑफ वॉशिंग फेल बाय द वे साइड, और बहुत सारे बंडल जो कपड़े के थे वो नीचे गिर गए। द वाशरमैन ज्वाइन इन द चेज, अब धोबी भी उस दौड़ में शामिल हो गया। चिल्ड्रेन ऑन देयर वे टू स्कूल डिसाइडेड दैट हियर वाज समथिंग बेटर टू डू देन अटेंड क्लासेज, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो भी मंकी के पीछे दौड़ने लगे बनिस्पत की स्कूल जाने के। वो स्कूल नहीं गए, मंकी के पीछे दौड़ने लगे, मज़ा लेने लगे। विथ साउट्स ऑफ ग्ली दे शून ओवरटुक देयर पेंटिंग एल्डर्स, और बच्चे तो बहुत तेज़ से जौलते हैं, पेंटिंग मतलब हाँफते हुए, जो एल्डर्स जो दौड़ रहे थे बंदर के पीछे हाँफ रहे थे उसको भी ओवरटेक करके सारे बच्चे
बंदर के पीछे पड़ गए। टूटू फाइनली लेफ्ट द बाजार एंड टूक ए रोड लीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस। अब वो बाजार छोड़ करके दूसरा रोड पकड़ लिया जो मेरे घर की तरफ जाता था। बट नोइंग दैट शी वुड बी कॉट एंड लॉक्ड अप वंस शी गॉट होम। लेकिन वो बंदर जानती थी कि अगर मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे को सब लोग पकड़ लेंगे और मेरे को लॉकअप में बंद कर देंगे। सी डिसाइडेड टू इन द चेज बाय राइडिंग हर सेल्फ ऑफ द नेकलेस। इसलिए उसने गधे के ऊपर से उतर गया। डेफ्टली रिमूविंग इट फ्रॉम हर नेक सी फ्लंग इट इनटू ए स्मॉल कैनाल। वहाँ पर एक जो कैनाल था, छोटा सा तालाब जिसे कहते हैं उस तरह का, तो उसमें वो कूद पड़ा बंदर। दैट रैन डाउन टू द रोड। द ज्वेलर विथ ए क्राई ऑफ एंग्विश फ्लंग इनटू द कैनाल। अब ज्वेलर तो गुस्सा में चिल्लाते वो भी उस कैनाल में घुस गया। सो डिड रॉकी, रॉकी भी घुस गया। सो डिड आई, नरेटर जो रस्किन बॉन थे वो भी चले गए पानी में। सो डिड सेवरल अदर पीपल, जो ज़्यादा जितना भी लोग थे सब उसमें चले गए। वो थे डर्स एंड चिल्ड्रेन, सब छोटे से तालाब में घुस गए एकदम उस नेकलेस को खोजने के लिए, क्योंकि उसमें उसने फेंक दिया था। इट वॉज टू बी ए ट्रेजर हंट। ऐसा लग रहा था कि यह एक ट्रेजरी हंट है। सम 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, रॉकी शाउटेड आई हैव फाउंड इट। रॉकी ने चिल्लाया कि मेरे को ये मिल गया। कवर्ड इन मड वाटर, लिलीज, फर्न्स एंड टैडपोल्स। उसमें नेकलेस में गंदा लगा हुआ था, लिली के पंखुड़ियाँ उसमें लगे हुए थे, टैडपोल्स मतलब वो छोटा छोटा जो मेढक होता है उसका कुछ अंश उसमें लगा हुआ था। वी इमर्ज फ्रॉम द कैनाल। हम लोग कैनाल से बाहर आए। एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर। रॉकी बेचारा जा कर के नेकलेस शॉपकीपर को दे दिया। शॉपकीपर को थोड़ा राहत की सांस मिली। फाइनली द रिंग वाज बॉट, द एंगेजमेंट वाज अनाउंस्ड। अंतत्वगत्वा रिंग को लाया गया, खरीदा गया, एंगेजमेंट अनाउंस किया गया एंड डेट वाज सेट फॉर द वेडिंग। शादी का दिन तय किया गया। अब शादी के दिन आ गई, ढोल बाजा बजेंगे, शादी होगी। ए फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग आई फाउंड टूटू इन द किचन। तो वेडिंग के कुछ दिन, एक दिन पहले मैंने देखा कि टूटू किचन में ग्रैंड मदर को मदद कर रहा है। ग्रैंड मदर प्रिपेयरिंग द वेडिंग केक, वो वेडिंग केक बना रही थी। टूटू often helped with the cooking and when grandmother was not looking added herbs, spices and other interesting items to the pots। वो जो केक बना रही थी उसमें जब ग्रैंड मदर का ध्यान इधर उधर जाता था तो उसमें मसाला मिला देता था, मिर्ची का मिला देता था, हर्ब्स मिला देता था, कुछ कुछ उसमें मिला देता था जो नहीं मिलाने का सामान होता था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट वेंट इनटू द वेडिंग केक। मैं नहीं जानता कि वेडिंग केक में क्या मिलाया गया। When grandmother was not looking, but I did a spot। लेकिन मैंने तो देख लिया था कि उसमें क्या हो रहा था। टूटू स्टरिंग इन सम रेड चिलीज, उसमें रेड चिली मिलाया, सॉस, बीटर गार्ड, करेला मिला दिया, करेला का सीड्स एंड जनरस हेल्पिंग एग सेल्स। एग सेल्स उसमें तो दिया ही जाता है। इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट वेर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज। अब आप समझ सकते हैं वेडिंग जब हुई तो उसमें केक बांटा गया तो उसके बाद बहुत दिनों तक बहुत सारे गेस्ट नज़र नहीं आए। आप समझ सकते हैं कि उनका स्टमक आउट ऑफ ऑर्डर हो गया होगा, पेट खराब हो गया होगा खाने के बाद। मोस्ट ऑफ पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर। सबको लगता था कि फ्लेवर बहुत सुंदर है, लेकिन खाने के बाद नेक्स्ट डे उनको पता चला कि वेडिंग केक का फ्लेवर कितना अच्छा था कि पेट उनका गड़बड़ हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस स्टोरी गिव्स अस मैसेज हाउ टू कोप अप विथ एनिमल्स। एनिमल के साथ हम कैसे एडजस्ट करें। एनिमल लव विथ फन एंड जॉय। अगर हम एनिमल्स को रखते हैं तो वह एक हमारे लिए फन और जॉय का भी कारण हो जाता है, मज़ा भी आता है। थर्ड थिंग, इजी टू ब्रिंग ए वाइल्ड एनिमल इन द हाउस। आप कोई वाइल्ड एनिमल्स घर में लाते हैं तो लाना तो बहुत आसान है, बट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विथ इट्स नेचर। लेकिन उसके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दैट्स ऑल, थैंक्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड share। That's all. Thank you.